नारायण नमस्कृत्य नरश्चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयते। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आद्ये चान्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। शुक्लम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णुवे नमो वे ब्रह्मविदधये वसिष्ठाय नमो नमः। मन्मथः श्रीजगन्नाथ मद्गुरुः श्रीजगद्गुरुः ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती महामाये विद्ये कमलालोचने विद्यारूप विशालाक्षी विद्यादेहि नमस्तुते। भीमस्यापि रणे भृङ्गो मुनिरपि मतिभ्रम यदि सुधमा सुध वाममदस्य न विद्यते। गरुड़ पुराण विषय प्रवेश पूर्वरु जगतर नाथ पतित पावन लक्ष्मी प्राणधन दीनजन बंधु करुणार सिंधु नीलाद्रि बिहारी दुखी दुखहारी अनंत मूर्ति वैकुंठपति कमला हृदपद्म दैत्यारी शरणरक्षक जगत जीवन जगतकर्ता परम ब्रह्म सनातन आर्त विनाशन त्रैलोक गोसाई अकृत कर्ता अमृत मंता अदृष्ट द्रष्टा अशरण शरण अकारण कारण पद्मपलाशलोचन श्री चरण अनंत कोटि प्रणाम। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। सृष्टि प्रसंग द्वापर युग शेष कली युग आरंभ। कली युग आगमन देखि सकल मुनि ऋषि माने नमिष्या अरण्य एकत्रित होई कली कलुषु यज्ञ पाई योजना कले ओ यज्ञ कले। यज्ञ सरिबा परे पूर्णाहुति होई भगवान विष्णु को संतुष्ट कले। मुनि ऋषि माने भगवान विष्णुकर गुणगान कीर्तन करी आनंदित होउथिले। समस्तଙ୍କ मुहरे विष्णुଙ୍କର जणाण। नमिष्यारे यज्ञ करुथिबा समस्त ऋषि माने विष्णु भगवान कीर्तन करुथिबा समय सूत मुनि से स्थान अर्थात नमिष्या अरण्य प्रवेश कले। सूत मुनि को सकल ऋषि माने व्याससूत बोली जानिथिले। व्याससूत आसीबार देखि तांकु आदर गौरव करी उच्च आसन दे बसाइले। समस्त ऋषि बहु विनय होई कहिले, हे मुनिवर आम्भ मानक ठारे दया जदि आपणकर थिब तेबे आम्भ मानकु पुराण पाठ किछि कुहन्तु। आपणक मुखरु आमे पुराण शुणिले निश्चित आम्भ माने ए घोर कलिकाल पाप तापरु आम्भे माने निस्तार पाइबु। सूत मुनि अन्य ऋषिगणकर श्रद्धा और भक्ति देखि आनंदित हेले ओ गुरु पाद पद्मरे भक्ति सहाकार वंदना कले। सूत मुनि जेहेतु व्यासंकर शिष्य थिले
ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବ୍ୟାସଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ମଧୁର ବଚନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲେ, ହେ ଋଷିଗଣ, ବ୍ୟାସ ଦେବକୃତ ଯେଉଁ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ତାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ କହୁଅଛି। ଏବେ ସାବଧାନ ହୋଇ ଶୁଣିବା ହୁଅନ୍ତୁ। ସୁତ ମୁନି କହିଲେ, ଦିନକର କଥା। ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ନିକଟରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ବିନୟର ସହିତ ଠିଆ ହୋଇ ଗରୁଡ଼ ଧୀର ଓ ମଧୁର ବଚନରେ ପଚାରିଲା, ହେ ଜଗତକର୍ତ୍ତା, ଆପଣ ମୋତେ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ କୁହନ୍ତୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଭୃତ୍ୟ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେବା କରି ଆସୁଛି। ହେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି, ମୋ ଠାରେ ପ୍ରଭୁ କରୁଣା କରି ଆପଣ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ବିଷୟଟି କୁହନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି ଭୃତ୍ୟ ଗରୁଡ଼ର ଭକ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଖି ଗରୁଡ଼କୁ ମଧୁର ବଚନରେ କହୁଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ କଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଭଗବାନ ହୟଗ୍ରୀବ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ଶକ୍ତି ଦେଖି ଦେବବ୍ୟାସ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣର ରଚନା କଲେ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ଯେଉଁ ଆଖ୍ୟାନ ଅଛି ତାହା ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ଅଟେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି ଗରୁଡ଼କୁ ଯାହା କହିଥିଲେ ସେହି କଥାକୁ ବ୍ୟାସ ଲେଖିଲେ। ବ୍ୟାସ ଯାହା ଲେଖିଲେ ତାହା ସୁତ ମୁନି ସକଳ ଋଷିକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ମହାପ୍ରଳୟ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଅନନ୍ତ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କଲେ। ନାରାୟଣ ଶୋଇଥିବାର ଦେଖି ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଞ୍ଚାଳିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ ପାଦ ମଞ୍ଚାଳୁଥାନ୍ତି। ଏମିତି କେତେ କାଳ ବିତିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଳୟ କାଳ ଶେଷ ହେବା ସମୟ ଆସିଗଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀପତିଙ୍କର ଯୋଗନିଦ୍ରା ଶାନ୍ତ ହେବା କଥା ପ୍ରଭୁ ହୃଦୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ପ୍ରଳୟ ଜଳରୁ ଏକ ଦାନବ ଜନ୍ମ ନେଲା। ସେହି ଦାନବଟି ଥିଲା ଭୟଙ୍କର ଓ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ସ୍ୱଭାବର। ଦାନବକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଳୟ ଜଳ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ସେହି ଦାନବ ଘୋର ଗର୍ଜନ କରି ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲିବାରେ ଲାଗିଲା। ଦୈତ୍ୟ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲି ବୁଲି ଶେଷରେ ନାରାୟଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲା। ଦୈତ୍ୟ ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲା। ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଦୈତ୍ୟ କାମବାଣରେ ଘାରି ହୋଇଗଲା। ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ କୋଳାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲା। ଯେତେବେଳେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇଲା, ସେତେବେଳେ ଦେବୀ ବୀଣାପାଣି ଦୈତ୍ୟର ମତିଗତି ଜାଣିପାରି ସେଠାରୁ ପଳାଇଗଲେ। କାମବାଣ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ଦୈତ୍ୟ ସହଜେ କି ସରସ୍ୱତୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁଛି। ବୀଣାପାଣିଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଦୈତ୍ୟ ଗୋଡ଼ାଇଲା। କେତେ ବା ଦୌଡ଼ିବେ ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ। ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଦେବୀ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କାଇଦା ହୋଇପଡ଼ିଲେ, ସେତେବେଳେ ବଳବନ୍ତ ଦୈତ୍ୟ ତାର ନିକଟରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲା। ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଦୈତ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରିବ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ। ଏହା ଜାଣି ବୀଣାପାଣି କୌଣସି ମତେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ କପଟ ଅର୍ଥାତ୍ ମାୟା ରଚନା କଲେ। ଦେବୀ ବୀଣାପାଣି ଦୈତ୍ୟକୁ କୋମଳ ବଚନ କହିଲେ, ହେ ଦୈତ୍ୟ ମୁକୁଟମଣି, ମୋ କଥା ଟିକିଏ ଶୁଣ। ଦେଖ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି। ତାହା ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ମୁଁ ବିବାହିତା ନାରୀ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ଥାଉ ଥାଉ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ କିପରି ରମଣ କରିବି? ତାପରେ ଏକଥା ଜାଣିଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଅପବାଦ ଦେବେ। ତାହାଙ୍କୁ ମୁଁ କିପରି ସହିବି କୁହ? ହେ ଦୈତ୍ୟ ମୁକୁଟମଣି, ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ମାନ। ତୁମେ ତ ବଳବାନ ଅଟ। ତୁମେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିଦିଅ। ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ତୁମ ସହିତ ଦିନରାତି ମିଶି ରମଣ କରିବି। ମୋତେ ଯଦି ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ତାହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ମାରିଦିଅ। ସରସ୍ୱତୀ ଦେବୀଙ୍କର ମୋହମାୟା କଥା ଦୈତ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ। କମଳାପତି ଶୟନ କରିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଦୈତ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଗଦାରେ ପ୍ରହାର କଲା। ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦେହରେ ଗଦା ବାଜିବାରୁ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ଅଗ୍ନି ବାହାରିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଗ ନିଦ୍ରା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ନାରାୟଣ ଦେଖିଲେ ଅସୁର ହାତରେ ଗଦା ଅଛି। ରାଗିଗଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ଗଦାଧର ପ୍ରଭୁ ଦୈତ୍ୟ ଉପରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ। ଦୈତ୍ୟ ସହିତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ଏମିତି ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଯେ ତାହା କାଳ କାଳ ଧରି ଚାଲିଲା। କେହି କାହାରିକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। 12 ସମ୍ବତ୍ସର ବିତିଗଲା ପରେ ଅସୁର ବଳ କ୍ରମେ କ୍ଷୀଣ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯୁଦ୍ଧରୁ ଅପସରି ଯିବାକୁ ଦୈତ୍ୟ ମନେ ଭାବିଲା।
दैत्य जानीपारा ए निश्चित भगवान अटंती यहाँ ब्रह्मांड कहीं मारिपारे ना। एसबू कथा मन चिंता करी दैत्य विनती करी भगवान विष्णु को कहला, हे कमलाकांत मो उपरे दया कर, मते असुर जन्मरू मुक्ति कर दियो प्रभु। मु दुष्ट प्रवृत्तिर मुही मंद गति मु मंद कर्म भी करिछि। आपणक सह युद्ध करबा मोर नथिला। हे महाप्रभु मु असुर मु अज्ञान मोर बुद्धि विवेक किछि नाही। मोर पापराशि को विनाश करंतु। असुरर एहिपरि स्तुति देखि श्रीधर भगवान ताहा उपरे दया देखाइले। भगवान विष्णु कहले, हे दैत्य तोहर काया को लक्षे कोटी योजन पर्यंत विस्तार कर। विष्णु भगवानंकर आज्ञा पाई दैत्य निजर काया को लक्षे कोटी योजन पर्यंत विस्तार कला। चक्रधर चक्र को धरी दैत्य मुंड को काटिदेले। ताहार पिंड को दुई खंड करी मंथी देले। मेद को हाड़ सहित मर्दन कले। भगवान विष्णु निजर दैवी शक्ति बल दैत्य को स्त्री रूप करी से मेद को प्रलय जल स्थापी देले। निज देहरु लोम उपाड़ी से मेद निकट पोती देले। स्थिर होई जल दैत्य रहिला। से दिन ठारू मेदिनी सृष्टि हैला। एहा परे प्रभु तैलोक्य गोसाई तैलोक्य सृष्टि करिबा पाई विचार कले। ठीक सही समय आदिमाता मोहिनी रूप धरी नारायण को निकट रे आसी पहुँचले। नारायण को काम आसक्ति रे आकृष्ट कले। भगवान विष्णुंकर ठारू ब्रह्मबिंदु बाहरिला। से बिंदु को आदिशक्ति धारण कले। किसी समय बिंदु को धरिबा परे ताकू आसक्ति लागिबारु ब्रह्मबिंदु को धरि न पारी प्रलय जल रे देवी ब्रह्मबिंदु को पकाई देले। धरि न पारिण देवी प्रलय जल रे ब्रह्मबिंदु पकाइण देले कसतरे। आदिमाता जो ब्रह्मबिंदु को धरि न पारि प्रलय जल रे पकाई देइथिले सेई ब्रह्मबिंदुरु जन्म नेला ओंकार। ओंकारु तीनोटी बीज उत्पन्न हैला हिं श्रीं क्लीं। एही तीनोटी बीज हेले ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। प्रथम रे ब्रह्मा को निज आखिरे देखिले। ब्रह्मा को सृष्टि सजना पाई आज्ञा देले। प्रलय पूर्वरु जेपरी सृष्टि थिला सेहीपरि सृष्टि सजना करिबा पाई ब्रह्मा को आज्ञा देले। ब्रह्मांड ठाकुर ब्रह्मा को कहले, हे वेदवर पृथ्वी सहित समस्त जीवजंतु वृक्षलता पर्वत खूब शीघ्र सृष्टि कर। भगवान विष्णुंकर ठारू आज्ञा पाई ब्रह्मा सबु सजना कले। स्वर्ग मत्स्यपुर निर्माण कले। पशु पक्षी कीट सरीसृप नर असुर देवता स्थावर आदि सृष्टि करी चलिले। पूर्वर जहाँ थिले ब्रह्मा से सबु भियाण कले। ब्रह्मा सृष्टि करी सारिबा परे भगवान विष्णु को चाहिए। विष्णु भगवान सृष्टि को पालन करने को ब्रह्मा को दायित्व देले। ब्रह्मा सृष्टि करी सारिबा परे भगवान विष्णु को चाहिए। विष्णु भगवान सृष्टि को पालन करने को ब्रह्मा को दायित्व देले। परम ब्रह्म भगवान शंकर को चाहि कहले, हे शिव तुम्हें मो बोल मानी सबुबले जोगरे बसी थाओ। जेतेबेले पापर भारा अधिक होइजिब मो कथा मानी तुम्हें पापी मानकु संहार करिब। ब्रह्मा ब्रह्मांड रे भितरे जेतेक प्राणी सृष्टि कले समस्तंकर आत्मा रूपे भगवान विष्णु रहिले। तेणु समस्ते हेले विष्णुंकर अंश। ज्ञानी माने आज्ञा रूपक नेत्र रे भगवान विष्णु को देखती। श्रीधर भगवान काम क्रोध मोह लोभ मत्सर्य इत्यादि भियाण कले। ए सबू को प्राणी मानक देहरे रखिले। कारण सबुबले एमाने प्राणी मन को मोहिबे। प्रकृतिवश होई एमाने नाना कर्म रे घुरी बुलिबे। मोह माया रे पड़ी धर्म अधर्म विचार करि परिबे नाही। एणु पापरे प्राणी माने पड़िबे। पापरे पड़िले शिव भगवानंक निकट रे संहार हेबे। जो माने ज्ञान बल रे ब्रह्म को चिन्हि पारिबे आशा न रखी भक्ति करिबे से माने एही भवसागर रु निश्चित तरी जिबे। पाप ताप से मानक पाखरे पशिब नाही। व्यास अंगिरा मुनि माने एहार उदाहरण। व्यास ओ अंगिरा जहा लेखि करी जाइछंती ता हेउची पुराण। ब्रह्म नाम को हृदय धरी ए सब लेखा लेखिछंती। विष्णु महिमा को किपरि लोक माने बुझी पारिबे सेथिपाई तांकर एही प्रयास। विष्णु नाम को श्रवण कले मनुष्य पापरु अक्लेशरे पारी होइजिब।
विष्णु नाम को जो माने निंदा करिवे से माने मोह मायारे सबुबले सड़ी हेबे। मोह मायारे पड़ी जो माने बाटमाण हुंती से माने नाना जंत्रणा भोग करने सहित विभिन्न प्रकार रोगरे पड़ती। भगवान विष्णु पापी लोक मानक पाई जमपुर रे नरकदंडर व्यवस्था सृष्टि करिसंती। संसार मध्य जन्म होई जो माने मंद कार्य करती से माने निश्चित कर्म अनुसार भोग भुंजती। समस्त को सृष्टि करे प्रभु दैत्यारे वैकुंठरे बसिछंती। संसार रे जहा जहा भल मंद घटे प्रभु निरपक्ष भावे सबू देखु थांती। तांकरी आज्ञारे वायु चलप्रचल हुए, चंद्र सूर्य आतजात हुंती। तांकरी आज्ञारे इंद्रदेव वृष्टि करती। खरा वर्षा शीत और बसंत ऋतु तांकरी आज्ञारे समस्त को सुख दिए। सुत मुनि सकल ऋषि मानक कहले, हे मुनिगण आपण माने सृष्टि प्रसंग रे सब शुणिले। जहाँ गरुड़ पुराण रे लिखा होइछि एक कथा निजे प्रभु ऋषिकेश गरुड़ को कहते। हे मुनिगण भगवान विष्णु जहाँ गरुड़ को कहते मु सेया कहूछि। जदि किसी दोष थाए तेबे हे मुनि मो दोष धरिबे नाही। इति श्री गरुड़ पुराणे नमेस्यापाख्याने गरुड़ विष्णु संवादे ग्रंथ आरंभ सृष्टि प्रसंग कथोपकथन नाम प्रथम अध्याय।